السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر اور حکیم پروفیسر محمد اقبال فاروقی۔ محترم سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ تمام میرے چینل کو دیکھنے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں کے اصرار پر آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل ہم عام دیکھتے ہیں نظر کی کمزوری اور ضعف بصارت کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں پر گلاسز اور اینک لگائے پھرتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر والدین کے لیے بھی اور ہماری پوری قوم کے لیے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی بناوٹ، اس کے پکسلز اور اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا جو شاہکار ہے، یہ ایک الگ ٹاپک اور الگ موضوع ہے۔ میں احباب کی خدمت میں اس آج کے کلپ کے اندر نظر کی کمزوری کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی بصارت کی، نظر کی حفاظت نہیں کریں گے، تو یہ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے اس کی ناشکری کے مترادف ہے۔ آنکھ انسان کی قوت ادراک کا سب سے پہلا جاسوس ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ کمزور نظری کی اور ضعف بصارت کی جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے ان کی طرف میں احباب کی توجہ دلاؤں گا کہ اس کے جو اسباب اور وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہم حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ضعف دماغ اور ضعف ہضم کی متواتر شکایت جو ہے، یہ ہماری کمزور نظری اور ضعف نظری کا باعث بن رہی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان مطالعہ کرنا، یہ بھی کمزور نظری کا باعث ہے۔ اسی طرح لیٹ کر موبائل فون کا استعمال کرنا، کتب کا مطالعہ کرنا لیٹے لیٹے، یہ بھی ضعف نظری اور کمزور نظری کا باعث ہے۔ اسی طرح نزلہ و زکام دوام سے ہمیشگی سے رہنا، یہ بھی ضعف نظری کا ایک باعث ہے، کمزور نظری کا ایک باعث اور وجہ ہے۔ اسی طریقے سے دماغی امراض کے اندر زیادہ دیر تک مبتلا رہنا، یہ بھی انسان کی نظر کو کمزوری کا باعث ہے۔ درد سر مسلسل رہنا، غلیظ اور بھاری اشیاء کا کثرت سے استعمال کرنا، باریک نظری سے زیادہ کام کرنا، باریکی والے زیادہ کام کرنا، تمباکو نوشی، منشیات اور مسکرات کا زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ، یہ بھی نظر کی کمزوری کا باعث ہے۔ جسم سے کثرت سے خون کا بہہ جانا، کثرت سے خون کا نکلنا، یہ بھی ایک کمزور نظری کی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ سر پر چوٹ آ جانا یا بار بار بچوں کا گرنا، سر میں بار بار چوٹیں لگنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب نظر کی کمزوری کی دیگر وجوہ ہیں، ہم ان کو کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نظر کی کمزوری کی وجوہات ہوتی ہیں اور علامتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، میں چند ایک علامتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک بچے بڑے پڑھتے ہیں، نظر کا کام کرتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آنکھوں مطالعہ کرتے وقت یا تلاوت قرآن کریم کرتے وقت
इंसान की निगाह हरूफ पर जमती नहीं है। हरूफ मिले जुले, मोटे मोटे और धुंधले नज़र आते हैं या डबल डबल हरूफ नज़र आते हैं। आप यूँ समझें कि ये नज़र की कमज़ोरी है। मुताला के दौरान आँखों का थक जाना या आँखों से पानी का बहना, ये भी नज़र की कमज़ोरी का एक अलामत है। आप इसको समझें कि यह नज़र की कमज़ोरी है। इसके अलावा सर के अंदर हर वक्त हल्का हल्का दर्द रहना, हम इसका इलाज अपनी मर्ज़ी से पैनाडॉल एक्स्ट्रा, सादा, पॉनस्टान वगैरह टैबलेट का इस्तेमाल कर करके अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपनी सेहत को ख़राब कर देते हैं, जबकि हम इसके असल सबब को मालूम करने की कोशिश नहीं करते। इसका असल सबब मालूम करें। सर में मुसलसल दर्द रहना ये नज़र की कमज़ोरी का बायस है। मुताला के दौरान हमारे कंधों को खिंचाव होता है या मुताला के दौरान हमारी आँखों को खिंचाव होता है, तो ये जो वजह है ये भी वजह हमारी नज़र की कमज़ोरी है। हम इसको समझते हैं कि ये पट्ठों की कमज़ोरी है, हमारे पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं या दीगर वजूह, जबकि ये नज़र की कमज़ोरी होती है। तो मोहतरम सामीन और नाज़रीन, ये मुख्तसर अलामतें और वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि अहबाब के बार बार इसरार पर मैं ये इसका इलाज नुस्खा जात अहबाब की नज़र करता हूँ। सबसे पहले इलाज के दौरान असल सबब को मालूम करना चाहिए, असल वजह को मालूम करके उस वजह को दूर करना चाहिए। सिगरेट नोशी या मुस्करात मनशियात का ज़्यादा इस्तेमाल है तो उसको छोड़ दें। नज़ला ज़ुकाम हो तो सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम का इलाज करना चाहिए। शकील, भारी, तली हुई अशिया का जो इस्तेमाल है उसको तर्क कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। अगर कब्ज़ मुसलसल मरीज़ महसूस करता है तो इसमें नुस्खा नोट कर लें। अतरीफ़ल ज़मानी 7 माशा रात को मरीज़ को खिलाएं, गर्म दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, तो इंशाअल्लाह इससे भी सर दर्द, आँखों का खिंचाव, ये काफ़ी हद तक मरीज़ इसमें अफाका महसूस करेगा। इसके अलावा मुसलसल सर दर्द महसूस करता है मरीज़ तो अतरीफ़ल कशनीज़ी 1 तोला सोते वक़्त इस्तेमाल करवाएं। अगर दिमाग की कमज़ोरी महसूस करता है मरीज़ तो खमीरा, गाव ज़बान, अंबरी, जवाहरदार 5 माशा सुबह नहार और सोते वक़्त, यह किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मैंने अक्सर 1-2 क्लिप्स के अंदर कंपनी का नाम लिया है, तो अहबाब ये समझते हैं कि शायद इनका कोई कंपनी के साथ कोई लिंक है या कंपनी इनको को कमीशन देती है हमारा कमर्शियल देने का। आप किसी भी कंपनी के ये खमीरा जात इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उससे मुसलसल आपको इसी तरीके से फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक नुस्खा जो मैं अरसा दराज से इस्तेमाल करवा रहा हूँ अपने पेशेंट को, और उससे बहुत ही अफाका पेशेंट महसूस करते हैं, हत्ता कि 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल से जो हमारे पेशेंट हैं वो अल्लाह के फजल व रहमत के साथ इंशाल्लाह 4-5 नंबर तक ऐनक जो है वो आसानी से उतर जाती है। लिखवाता हूँ, नुस्खे को भी नोट करें, और ये पहले 1.5 माह तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आप कुछ फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। जब 1.5 माह गुजरेगा तो हर हफ्ते के बाद आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि नज़र का, ऐनक का एक एक जो पॉइंट है आपके ग्लासेस का, वो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, मरीज़ अरके सौंफ का इस्तेमाल करे। सुबह, दोपहर, शाम खाने के 1 घंटा आधा घंटा बाद 1 कप किसी भी कंपनी का ले लें, अपना बना लें, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक नुस्खा जो मैं मुसलसल तवातर से इस्तेमाल करवाता हूँ, अहबाब को फ़र्दन मैंने लिख के भी दिया है, और आज मैं अपने इस क्लिप के अंदर अहबाब की नज़र करता हूँ, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुस्खा आप नोट करें। नुस्खा कुछ यूँ है, स्क्रीन पे भी आप उस नुस्खे को देख रहे हैं और मैं नुस्खा आपको लिखवा रहा हूँ, आप उस नुस्खे को ज़रा नोट कर लें जी। सबसे पहले सौंफ 25 ग्राम, ज़ीरा 25 ग्राम, खुशक धनिया जिसे कशनीज़ भी कहते हैं, कशनीज़, यह 25 ग्राम, उस्तुखदूस 25 ग्राम, मिर्च स्या 5 ग्राम, फिलफिल स्या यानी काली मिर्च ये 5 ग्राम है। इसके अलावा मगज़ बादाम के मगज़ गिरियाँ यानी
50 ग्राम और मिश्री 150 ग्राम। ये सुबह के वक्त नहार बड़े 1 चम्मच इस्तेमाल करें, रात के वक्त भी सोते वक्त 1 चम्मच इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ, और 10-12 साल की उम्र में पौना चम्मच, हाफ चम्मच आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह बग़ैर किसी नागे और इनक़िता के तवत्तुल के इस्तेमाल करवाने से अल्लाह के फ़ज़ल से जिस तरह मैं आपके सामने इसके फ़वाइद बयान किए हैं, अल्लाह की रहमत से ये आपको उसी तरह फ़वाइद इसके इंशाअल्लाह मुयस्सर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको ये इसको मुकम्मल तौर पर इसका सफ़ूफ़ बनाना है, पाउडर बनाना है, पाउडर बनाकर इसको इस्तेमाल करना है। तो अहबाब दोबारा मेरे इस चैनल को अपना इस्लामिक कलेक्शन, ये रूहानी, तिब्बी और इस्लामी सेंटर है और ये चैनल है इस्लामी, तिब्बी और रूहानी, आप इसको सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह आइंदा जो वीडियो है वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह तिब्बी अहबाब की खिदमत में गोश गुजार होगी। अहबाब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।